Good evening, everyone. And today is the day 12 of this Power BI batch. And we are resuming this after a 2 days long gap over the weekend. And we are going to look today at some of the DEX functions and we'll see some new calculations today, new visuals also today. We'll explore something new. Okay. And I'll just recap what we did in the previous sessions, okay? So that if you have missed out something, you can get it back, okay? And if anyone has any questions when you're practicing or when you're doing, if you have any questions, you can ask right now, or maybe we can take it in the at the end of this session since we already have started now, okay? So you can put your questions in the chat, or you can ask them separately once we are done with this session. Okay, so I'm going to revise whatever we have done so far. Okay, so let's start. And those who have not completed and shared the Blinkit dashboard with me, okay, just complete it and share it over the group, or you can share personally with me, like Ria has shared. So I will give my inputs on it, okay. So I will give my feedback on it, okay, where you have gone wrong or where you can improvise this. So do share it with me either in the group or personally, whatever you feel comfortable with. Now see, one thing I would like to tell you everyone is that Power BI or Excel or any other tool which we are going to use or learn, it is updating every day. Okay, so you will see that when we started this match, these three visuals were not there. Okay, so one, Oh, two, three, four, five, six, seven. They were till here only. These three, uh, these three are newly updated. Okay, in oh, last 2 3 days also oh, only. Correct. तो इतना फास्ट अपडेट होता है और इट कीप्स ऑन अपडेटिंग. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि वंस दिस बैच इज ओवर, हम लोगों ने ये प्लान किया था कि ये 21 25 डेज का बैच होगा और हम लोग खत्म कर देंगे इसको जनवरी में, बट आई डोंट थिंक सो. आज 27 तारीख है तो 31 तारीख तक नहीं होगा. आई वॉन्ट टू डू वन मोर डैशबोर्ड वंस वी डू दिस. एक और फाइनेंशियल डैशबोर्ड मुझे करवाना है. इट विल टेक अ वीक और सो. तो बाय फेब फर्स्ट वीक वील बी एबल टू फिनिश दिस, ठीक है. और द अदर रीजन इज दैट whatever additions you are getting, जैसे ये कार्ड नया टाइल साइज आ गया ये, I will also have to explore what are these, है ना, and we will explore. And once the batch is also over, whatever new features are adding up, I will create small videos and put it for you all, है ना. तो stay updated. और ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पावर बीआई सीख लिया तो अब कुछ नहीं बचा सीखने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एवरी डे देर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी and many new things which will not be covered in this because it is beyond the area or the scope or the timeline. So once this is a beginner thing, once you complete this, then maybe after a month or 2 months we will have a refresher this thing also, or advanced module where we will learn advanced things. तो learning is a never ending process. आप जितना सीखते जाएंगे उतना you will be able to enhance your learning. तो again and again I'm repeating the same thing कि keep on practicing and keep on asking your doubts so that you become better at it. और मैं चाहूंगा कि आप जो भी यहाँ पे सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली यूज भी करें विथ योर वर्क, ठीक है. And if you find any trouble anywhere, I'm always approachable. So feel free to do that. Actually, with this, let us start with today's session. And I'll start with the model. Again, we will look at the table, the connections. Okay. And what we were doing earlier is we were seeing wherein we can add new category of data. ठीक है. तो अगर हम रिवाइज करें तो देखिएगा सेल्स पर्सन टेबल. ओके. This table is basically a dimension table. Okay. Now what we are going to do today is we are going to rename these tables. Okay. तो if you will see advanced level of Power BI और YouTube videos of foreign authors जो कि काफ़ी experienced हैं, और foreign जो authors होते हैं या जो videos बनाते हैं, you will see उनके Power BI में आपको है ना यहाँ पे dim लिखा हुआ दिखेगा और fact लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है. dim mean dimensions, f means fact table or a measure, right? So we will also do that. So if we look at the product table,
इट इज अ डायमेंशन टेबल, बिकॉज यहाँ पर कोई भी आपको फील्ड ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर कि यू हैव नंबर्स, ओनली वी हैव वन नंबर, दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट. नाउ थिंग इज दैट कि if you look at the standard cost, correct, that standard cost is missing a sigma over here, correct? So do you think a sigma should be there here? It is a measure, or should we consider it as a dimension? बताइए. एंड आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, है ना? तो देर आर 15 पीपल, आज मैक्सिमम लोग ने ज्वाइन किया है, कुछ कुछ लोग अभी भी मिसिंग है, लेकिन मैक्सिमम पीपल आर देयर. सो आई वांट पीपल टू बी आंसरिंग दिस वट एवर क्वेश्चंस आई एम आस्किंग. तो प्लीज, शिल्पी और गर्वित, संतोषी, सोनाक्षी, रिया, So it may be a dimension. Dimension. व्हाई डू यू कंसिडर इट टू बी डायमेंशन? देखिए, वन से लेके हमारे पास 1200, इवन 1482 नंबर तक स्टैंडर्ड कॉस्ट है. ठीक है. सो इफ वी कंसिडर इट टू बी डायमेंशन, ठीक है, इन केस वी कंसिडर इट टू बी डायमेंशन, ठीक है, एवरीवन इज सेइंग डायमेंशन, सोनाक्षी इज सेइंग डायमेंशन. सो विल बी एबल टू यूज इट एज अ डायमेंशन इन एनी ऑफ द विजुअल्स? जैसे कि ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रोडक्ट की भी नंबर है, प्रोडक्ट की भी 210 से लेके 606 तक जा रहा है, करेक्ट? नाउ दिस प्रोडक्ट की विल डेफिनेटली बी कनेक्टिंग विद सम प्रोडक्ट, करेक्ट, और द सब कैटेगरी और द कैटेगरी. तो when I want to see anything as per the product key, I can use the product key as a dimension. Let's say, for example, we want to create a bar chart. Okay. अब y-axis में let me take product key because it is a dimension. So I'm taking product key. On the x-axis, I am taking unit sold, और sales में से हम ले लेते हैं quantity. Now what do you see? आपको काफी लंबा सा ये बार चार्ट दिख रहा है, काफी लेंदी सा बार चार्ट, करेक्ट? नाउ इज इट ऑफ एनी यूज in the data analytics or any kind of visual, any kind of reporting? We are creating a visual, we are knowing how to create a visual, but will it make any sense in any format? ये बताइए. No. डायमेंशन एंड मेजर में ना अभी भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, लाइक जो नंबर्स की रहती है, मैं अगर अपनी एक अकॉर्डिंग बताऊं जो मैंने पिछले इतने दिनों में सीखा है, अगर नंबर की रहती है तो वी जस्ट थिंक कि दिस इज द डायमेंशन, एंड हाँ, अगर इट्स कैटेगराइज आ जाती है, वर्बल की आ जाती है, इट साउंड्स लाइक कि हाँ, अल्फाबेटिक है, तो हाँ. उसको ऐसा मेजर मान के चल लेते हैं. नहीं 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 नहीं, उल्टा बोल दिया आपने. उल्टा बोल अच्छा दिया. सॉरी, हाँ मतलब उल्टा बोल दिया. हाँ, हाँ, वर्ड्स की को वो मान लेते हैं. बिल्कुल. एंड तो इसीलिए तो मैं ये यही क्वेश्चन. सही फॉर्मेट है या देर इज समथिंग एल्स जो कि हमें ध्यान रखना है, बिकॉज ये बड़ा डाइसी हो जाता है एट हाँ द एंड ऑफ हाँ द डे. हाँ, सो दैट इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग इट आफ्टर 15 days ऑफ आवर क्लासेस. 10-12 दिन हो गए हमारे को, और ये शायद दूसरे दिन टॉपिक छिड़ गया था कि डायमेंशन और मेजर क्या होता है. अगेन आई हैव रीस्टार्टेड विद दिस टॉपिक बिकॉज आई वांट यू टू हैव अ क्लैरिटी फ्रॉम यू, कि आपको कितना क्लैरिटी, जैसे शिल्पी ने बताया कि कंफ्यूजन है अभी भी, हम लोग तो ऐसे ही चलते हैं, बाकी कितने लोगों को कितनी क्लैरिटी है इसके बारे में? So सी द can we मोर यू. can we say if the numerical figures are there, then it's a measure, and if the text is there, then it's the dimension. सर, प्रिमिलरी इट कैन बी ओके, बट वी कैन नॉट क्रिएट अ रूल लाइक दिस. हम ऐसा रूल नहीं बना सकते हैं कि जहाँ पे भी टेक्स्ट होगा वो डायमेंशन ही होगा, जहाँ पर भी नंबर होगा वो मेजर ही होगा. मेजर. ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है. अच्छा, हमें ठीक कंटेक्स्ट बात. में बात करनी पड़ेगी, जैसे कि आपने आज वो इनकम टैक्स वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, तो हम कोई रूल नहीं बना सकते हैं. ठीक हमें, बात. हर केस का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके हिसाब से देखते हैं. तो ऐसे ही जो भी डेटा आप पे एनालिसिस कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट विल डिसाइड वेदर इट इज अ डायमेंशन और अ Dimension or मेजर. measure. अब मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ ना, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी अबाउट इट. एंड ये व्हाई आई एम एम्फोसाइजिंग ऑन डायमेंशन एंड मेजर सो मच, मैं आपको इसका एक छोटा सा स्टोरी भी बताता हूँ इसके पीछे, है ना, व्हाई आई एम एम्फोसाइजिंग सो मच ऑन दिस, कि मैं बार बार आपसे इस पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एंड वी आर सीकिंग अ क्लैरिटी ऑन दिस. द रीजन इज
I was doing a training in उड़ीसा फॉर अ बीटेक बैच, और वो बैच ऐसा था, गवर्नमेंट ने वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी थी एंड दे हैड टाइड अप विद टेक महिंद्रा. टेक महिंद्रा वाज टू रिक्रूट दो स्टूडेंट्स हु वर गेटिंग ट्रेन्ड ऑन डेटा एनालिटिक्स, एंड दे वर ऑल बीटेक ग्रेजुएट्स. Oh, बीटेक थे, एमटेक थे, कुछ फाइनेंस, एमबीए फाइनेंस भी थे, उसमें मिक्स बैच था. मोस्टली दे वर बीटेक गाइस. तो अब उनको टेक्नोलॉजी आता है, सॉफ्टवेयर आता है, सब कुछ आता है, लेकिन टेक महिंद्रा के जो क्लाइंट्स थे, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस है, वैसे टेक महिंद्रा, तो दे वर इनटू कंसल्टेंसी. अब कंसल्टेंसी किस तरीके की, कि उनके जो क्लाइंट्स हैं, दो स्टार्टअप्स एंड ऑल दीज थिंग्स, दे वांट टू अंडरस्टैंड हाउ आवर बिजनेस इज ग्रोइंग, हाउ आर वी ग्रोइंग, हमारा रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है. तो अब इंजीनियर क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर बना देगा, वो एप्लीकेशंस बना देगा, पोर्टल्स बना देगा ना, वेबसाइट्स बना देगा, ये सब कर देगा. लेकिन वो, दैट विल हेल्प यू इन कैप्चरिंग द डेटा, कैप्चरिंग द इंफॉर्मेशन, करेक्ट. बट वट एवर इंफॉर्मेशन इज बीइंग कैप्चर्ड और रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स और इन द थ्रू द ट्रांजेक्शन्स, who is going to analyze that information, who is going to talk about कि what information is good, what is bad, how we can use it, इससे क्या रिजल्ट आ रहे हैं, ये कौन करेगा. तो ये काम होता है डेटा एनालिस्ट का. Analyst is basically analyzing the information that is captured by the system developed by an engineer. तो these guys have done engineering, but उनके साथ में ये था कि अब आपको एनालिसिस करना है. अब when we were doing the training, टेक महिंद्रा के जो सीएफओ है, he had come for a visit and he wanted to understand कि बच्चों को कितना आता है. 7 8 दिन, 10 दिन हुए होंगे, एंड आई स्टार्टेड, मैंने उनको इंट्रोडक्शन एक्सेल वगैरह सिखाया था थोड़ा बहुत, और ये डायमेंशन और मेजर पे क्लास ली थी. 2 3 दिन बाद ही वो आए थे. एंड यू वोंट बिलीव, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा ना, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक टेबल बनाई, और उसमें से सिर्फ यही 1 2 घंटे तक एक ही डिस्कशन चला, व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज मेजर. good, good. एंड ही इज लाइक, आई डोंट वांट टू टेस्ट योर नॉलेज ऑन हाई लेवल कोडिंग, और आपको कितना आता है, या आप कौन से विजुअल्स बना सकते हो, या आप कैसे कर सकते हो. मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट पे टेस्ट करना है तुम लोग को, कि हाउ स्ट्रांग आर योर फंडामेंटल्स. एंड टचवुड, उसमें देयर वाज 60 स्टूडेंट्स का बैच, उसमें से 15 20 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया. एंड देन आफ्टर दिस इंटरेक्शन ही टोल्ड मी कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय द वर्क यू आर डूइंग, क्योंकि मैं इतनी जगह पे जाके ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, लेकिन हमारे खुद के बंदे जो डेटा एनालिस्ट वाला काम करते हैं, उनको ही नहीं पता होता, दे आर वर्किंग ऑन इट. सो वहां से मुझे समझ में आया कि हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट देन जस्ट टू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क और द मैथोलॉजी. क्योंकि आपको ये एक लेवल तक ले जाएगी, आप बना पाओगे बहुत कुछ, लेकिन जहाँ जाके है ना, थोड़ा डिसीजन मेकिंग आ जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाएंगी, थोड़ा सा स्टेक बढ़ जाएगा, वहां पर फिर आपकी जो फंडामेंटल्स नॉलेज है, दैट विल टेक यू अहेड ऑफ अदर्स, Very clear. है ना. इसलिए मेरा फोकस ये रहता है. और आई नो पीपल डोंट आस्क क्वेश्चंस, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट आस्क क्वेश्चंस, आई एम वेरी, अभी तक मुझे इस बात की श्योरिटी नहीं कि किस बात की आपको शर्म है, झिझक है, या मतलब व्हाई डू यू रेजिस्ट इन आस्किंग क्वेश्चन, है ना. और जबकि मैंने कहा है कि देर इज नो बैड क्वेश्चन, देर इज नो स्टूपिड क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा नहीं है. और देखिए एक चीज और होती है, आई मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड थ्रू माय एक्सपीरियंस कि व्हाई डोंट पीपल आस्क क्वेश्चन, वो ये भी होता है कि वी आर सो मच कंसर्न अबाउट आवर सेल्फ इमेज, कि यार मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, सबको पता है मेरा नाम, मेरी बात सुनेंगे, और उनको लगेगा यार इसने ये क्वेश्चन पूछ लिया. और हम लोग, हम किसी के बॉस है, या हम किसी के सुपीरियर है, या हम किसी के सबॉर्डिनेट हैं, तो हमारा ऑफिस में है ना, थोड़ा सा वो लोग इस तरीके से देखेंगे कि इनको ये नहीं है. व्हाट आई बिलीव इज दैट, कि ना, हमें इस तरीके से बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए. ठीक है, पहली बात तो ठीक ये है. ठीक बात दूसरी बात ये है कि अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, दैट मीन्स वो क्वेश्चन आया क्यों, क्योंकि वो यू आर थिंकिंग अबाउट इट. पहली बात तो ये है कि यू आर थिंकिंग. दूसरी बात ये है कि आपने सोच के उस एंड उस थॉट को वहीं पे खत्म नहीं कर दिया कि यार चलो छोड़ो, बाद में पूछ लेंगे, है ना. तो वो जब थॉट आपके दिमाग में आया, दैट मीन्स यू आर एट द बैक ऑफ द माइंड, यू आर थिंकिंग अबाउट इट,
एंड यू आर लुकिंग फॉर क्लैरिटी बट यू डोंट आस्क, तो आपका थॉट जो है ना खत्म हो जाता है वहीं पर, वही लर्निंग खत्म हो गई। फिर आप कितने भी वीडियोस देख लो, कितने भी रिकॉर्डिंग्स देख लो, कितना भी मटेरियल पढ़ लो, यू विल नॉट गेट। बट अगर आपने क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर मिल गया और आप सेटिस्फाइड हो गए, तो वो लर्निंग फॉर लाइफ टाइम हो जाती है। और इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड यू आर डिबेटिंग विथ मी, देन ऑल्सो यू आर लर्निंग एंड एवरी वन एल्स इज लर्निंग बिकॉज ऑफ यू। तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, और चैलेंज द आंसर। तो उससे क्या होगा कि आई विल ऑल्सो बिकम Hello, परफेक्ट इन दैट। यस। hello. या So since it's measure because it's in number, no? सर अगेन सेम थिंग, प्रशांत, आई थिंक प्रशांत यू आर टॉकिंग राइट। Yeah, pressure. करेक्ट। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, देखिए, सिंस इट इज अ नंबर, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ नंबर, करेक्ट, and product key is also a number. Now how do I decide कि what is a measure and what is a dimension, है ना, पहले इस पे बात करते हैं, फिर मैं ये बताऊंगा कि what is the different way of looking at it। अब प्रोडक्ट की है, कैन आई ऐड प्रोडक्ट की, ऑल द प्रोडक्ट की टुगेदर, कैन आई टेक एवरेज, कैन आई फाइंड मैक्सिमम प्रोडक्ट की, मिनिमम प्रोडक्ट की, इज द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस यस और नो, टेल मी। They are distinct. No, no, it is not like that. हम्म। Definitely, because product key, it is given here as a number. If हम्म। we replace this with some, alphabetic also, then हम्म। also it's distinct. So similarly, Yes. standard cost that has been given, if we see that 205 is given around 3 to 4 times. हम्म। So I think हम्म। it is also distinct, way. So they are not able to be, added together and करेक्ट। taken some. That's why it is dimension and not the measure. Exactly. See, Ria has put a very good message in the chat. ठीक है, मैं आई वॉज रीडिंग दैट। वो क्या लिख रही है, इफ देर इज एनी कैलकुलेशन दैट कैन बी डन ऑन डेटा, देन इट इज अ मेजर। इफ डेटा कैन बी यूज टू कैटेगराइज और सेगमेंट, देन इट इज अ डायमेंशन। Correct. ठीक है। दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग, कि प्रोडक्ट की के साथ में क्या आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैन वी ऐड इट, कैन वी डिवाइड इट, कैन वी मल्टीप्लाई इट, कैन वी टेक एन एवरेज, कैन वी फाइंड आउट मिनिमम मैक्सिमम, नो, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। बट कैन वी Correct. कैटेगराइज, कैन वी ग्रुप, कैन वी कंबाइन, कैन दे रिप्रेजेंट अ सेगमेंट, कि 210 से लेके 250 तक, 230 तक, टू 300 तक प्रोडक्ट की जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है, कैन वी डू दैट? आंसर इज यस। Yes. कर सकते हैं ना, हम क्लब कर Yes. सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर Uh, सकते हैं। uh, तो यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ कि क्या, हाउ आई एम गोइंग टू यूज द डेटा दैट आई एम सीइंग। तो ऑब्वियसली इससे ही क्लैरिटी आ गई कि प्रोडक्ट की हालांकि नंबर है, लेकिन ये क्या है, इट इज अ डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, इट शुड नॉट बी अ टेक्स्ट, इट शुड बी अ नंबर ओनली। Although we are not able to categorize it as a measure, but still है तो नंबर ही प्रोडक्ट की। ठीक है। अब फर्क क्या पड़ता है, जैसे ही आप इसको ये कन्वर्ट करते हैं ना नंबर में, हो सकता है कि यहाँ पर सम बता दे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट की के आगे सिग्मा लगा हो जाएगा, बट दैट इज नॉट राइट। करेक्ट। नाउ सी, इफ यू रीड द बिलो द सम, एक एक्सप्लेनेशन आ रहा है, लेट मी रीड इट। ये क्या बोल रहा है, सेट द डिफॉल्ट वे टू समराइज वैल्यू इन दिस कॉलम, फॉर एग्जाम्पल अ सम और एन एवरेज, व्हेन इट इज यूज्ड इन अ विजुअल। To change the summarization in a specific visual, go to the field tab in the visualization pane. Setting it to don't summarize will show the distinct value for that column. So अभी जो कमल ने कहा कि जब हम इसको डोंट समराइज कर देते हैं तो ये डिस्टिंक्ट वैल्यू दिखाएगा। ठीक है। और सिमिलरली प्रोडक्ट तो हमें समझ में आता है कि ये डिस्टिंक्ट है, प्लस हर एक प्रोडक्ट का अपना एक कोड दे रखा है, तो ये क्या होगा, ये डायमेंशन। डायमेंशन ही होगा। करेक्ट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच शुड बी incurred while producing this particular product। तो अगर मैं स्पोर्ट 100 हेलमेट ब्लैक बना रहा हूँ, तो इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट 12 रुपये आती है, लेकिन एक्चुअली जब मैंने बनाया तो 14 रुपये लग गया, या 15 रुपये लग गए, या 10 रुपये में भी बन गया, तो वो एक्चुअल कॉस्ट होती है। तो जब हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं इन आर सीए और इन योर बीकॉम ऑल्सो, यू मस्ट हैव स्टडीड, देर इज अ सब्जेक्ट, देर इज अ टॉपिक कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो हम ये देखते हैं कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी और एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी, और उसके बाद हम वेरियांस निकालते हैं। एम आई राइट? yeah.
Yes. So same concept is there. That means although standard cost is a number, we can add, we can multiply, we can divide, we can take average. Still, it is not a measure. It will be considered as a dimension only because they are distinct number. अब ये repeat भी हो रहा है, जैसे 170 आपको बहुत बार मिल जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट, लेकिन वो क्या है, वो अलग अलग प्रोडक्ट की सेम स्टैंडर्ड कॉस्ट हो सकती है. यू गेटिंग इट? So in that sense, it is a dimension. नाउ हाउ टू यूज इट इन द विजुअल, मैं आपको बताता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की रखा, और प्रोडक्ट की रख के अभी देखो ये क्या हुआ, सम ऑफ क्वांटिटी आ गया यहाँ पर. यहाँ पर ये प्रोडक्ट की को मैंने आई हैव मेंशनड इट ओवर हियर. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रिमूव एंड पुट इट अगेन. तो हमने प्रोडक्ट की रखा. ठीक है. नाउ व्हाई इट इज शोइंग लाइक दिस, बिकॉज देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स. तो ये देखो है ना, जो जो प्रोडक्ट की के हिसाब से कितनी क्वांटिटी है वो इस तरीके से बाहर दिखा रहा है. बट इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. करेक्ट. इफ वी क्रिएट अ कॉलम चार्ट ऑल्सो, इट देर बी सो मेनी, इट विल नॉट मेक एनी सेंस. करेक्ट. अगर मैं और कोई भी चार्ट बना दूंगा तो भी वो कुछ आपको सेंस नहीं मिलेगा. हाँ, आप यहाँ से देख ले सकते हो कि इसकी हाइट ज़्यादा है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है 472, इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा बिक रही है. करेक्ट. बट मान लीजिए मुझे यही विजुअल यूज करना है, देन हाउ टू यूज इट? then what we need to do is we need to add something in the filter. Suppose I want to see the top 5 selling product based on sales quantity, और प्रोडक्ट की चाहिए मुझे उनका. ठीक है. तो फिर हाउ कैन आई डू दैट? हाउ कैन आई फाइंड द टॉप 10 selling product? I don't want to see all the products. I want to see only top 10. तो देर इज अ इनबिल्ट फिल्टर. वी डोंट हैव टू ऐड द स्लाइसर ऑल्सो. हमारे पास इनबिल्ट फिल्टर है. अभी यहाँ पे क्या लिखा है? फिल्टर इज ऑन दिस विजुअल, प्रोडक्ट की इज ऑल, मतलब सारी दिखा रहा है. व्हाट आर द ऑप्शंस? देर आर ऑप्शंस ऑफ फिल्टर टाइप, एंड द ऑप्शन इज, उसी में आपको दिखेगा एडवांस फिल्टरिंग, बेसिक फिल्टरिंग एंड टॉप एन. इन द टॉप एन आई कैन से आई वांट टू सी द टॉप 10 प्रोडक्ट्स. तो मैं यहाँ पे टॉप एन में 10 लिख देता हूँ. नाउ बेस्ड ऑन व्हाट? So based on value, by value, what value? So you will say quantity. So what you will do is you will go to the quantity tab, मतलब the bill tab, data tab, and यहाँ से आप sales वाले टेबल पे जाएंगे, और इसका जो quantity है ना, that you will pull it over here in the value. ठीक है. Now as I do this and I'll say apply filter, do you see this chart getting filtered now? ठीक है. ऑल्दो आई यूज अ रॉन्ग विजुअल, ये ट्रेंड चार्ट है, ये एरिया चार्ट है. वी शुड हैव यूज्ड अ स्टैक कॉलम चार्ट. ठीक है. नाउ इट इज शोइंग यू डिफरेंट कॉलम्स. ठीक है, दिखा रहा है आपको. तो या हम इसमें पाई चार्ट भी ले सकते हैं. ठीक है. सो इट इज शोइंग द 10 प्रोडक्ट्स विच आर द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है. अब आपको ये टॉप 10 प्रोडक्ट पता चल गए. मान लीजिए यू वांट टू गेट द नेम्स आल्सो. करेक्ट. देन व्हाट यू कैन डू इज अलोंग विद द प्रोडक्ट की इन द लेजेंड, ओके, यू कैन ऐड द प्रोडक्ट नेम एज वेल. ठीक है. तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट मी ऐड द प्रोडक्ट नेम एज वेल. सो प्रोडक्ट. ठीक है, ये मुझे विजुअल में ऐड करना पड़ेगा. प्रोडक्ट की हटा देते हैं, है ना. अब देखो ये प्रोडक्ट की दिख गए आपको, प्रोडक्ट नाम दिख गए. वील गो टू द फॉर्मेट ऑप्शन, एंड इन द फॉर्मेट ऑप्शन, इन द लेजेंड डिटेल लेबल, डिटेल लेबल में डेटा वैल्यू और परसेंटेज दिखा रहा है, आप कैटेगरी और परसेंटेज ऑफ टोटल कर दीजिए. ठीक है. एंड वी कैन मेक इट बोल्ड ऑल्सो. Now, are you able to see that what are the top 10 selling products based on their quantity sold, percentage contribution into sales? ठीक है. अब ये काम कैसे करेगा? ये what is the purpose of doing this? The purpose is, suppose the management says I want to increase the sales in quantity. Which product should I focus on more? What is your answer? Tell me. Definitely the product which is fetching the less sale, you see. Correct. So one way of looking at is that the product which is fetching the less sale, है ना.
तो आप उसमें एफर्ट लगाओगे उसकी सेल बढ़ाने के लिए। ठीक है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ सर कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी ऑलरेडी बिक बिक रहा रहा है, है, हाँ, उसी को क्यों ना हम फोकस उसी की करेंगे। सेल बढ़ा दें, एफर्ट कम लगेंगे। सो लॉन्ग स्लीव लोगो जर्सी 17.5% कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका, as compared to white bottle which is 8.37%, just half of what is long sleeve jersey. So if I put my efforts in increasing the sale of this, तो क्या मेरा contribution नहीं बढ़ जाएगा, करेक्ट। है ना? So this is how we should look at the data. मतलब we are getting to that level जहाँ पे हमें ये पता लगना चाहिए. Now again मतलब we are doing the analysis in isolation, अगर मैं इतना सही analysis करता हूँ तो ठीक है. Now let me do one thing. अभी यहाँ पर एक काम करते हैं. ये नया स्लाइसर आया है, लिस्ट स्लाइसर टूल टिप, ठीक है. यहाँ पर दिस इज ऑल्सो टाइल स्लाइसर. लेट मी इंट्रोड्यूस दिस. एक सेकेंड, बाहर आते हैं हम लोग और वी विल ट्राई विद दिस टाइल स्लाइसर. ये कहाँ गया टाइल स्लाइसर? ठीक है. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड अ फील्ड. मैं क्या करता हूँ, रीजन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे. ठीक है. अब देखिए क्या होता था पहले, व्हाट इज द डिफरेंस, मैं आपको बताता हूँ कि हाउ डज एन अपडेट कम. मतलब ये जो पावर बीआई में अपडेट आया है ना, ये क्या आया है और क्यों आया है. ठीक है. This you will be able to understand only when you have seen all the previous version, तो आपको समझ में आएगा. ठीक है. अब देखिए, I'll just try to showcase the difference between the slicer which we normally use and this slicer. ये मैंने slicer लगाया सर. ठीक है. और यहाँ पर what I'm doing is I'm adding the region, जो कि मैंने वहां पे भी किया. अभी can you make out the difference between this slicer and this slicer? Both are slicer, both will do the same thing. बट आपको यहां पर ये कैसे दिख रहा है, एज अ लिस्ट, और ये कैसे दिख रहा है, एज अ राइट। टाइल. करेक्ट. यू कैन सी ऑल द नेम्स व्हेन आई क्लिक ऑन ऑस्ट्रेलिया. यहाँ पे भी देखिए ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट हो गया, एंड आई एम एबल टू सी द टॉप 10 प्रोडक्ट्स इन सोल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. व्हेन आई क्लिक ऑन जर्मनी आई विल बी एबल टू सी जर्मनी. व्हेन आई क्लिक ऑन सेंट्रल आई विल बी एबल टू सेंट्रल सी सेंट्रल एंड कनाडा एंड सो ऑन. करेक्ट. ये काम मेरा इससे भी हो रहा था सर, इससे भी हो रहा था. करेक्ट. हाँ, फिर आया क्यों है फिर ये? फिर आया क्यों है, हाँ, सेम क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क यू वन. ठीक है. अब दूसरी बात यह है कि मैं इसको चाह के, मतलब मैं खुद से भी इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ. क्या ये वही हो गया जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, वैसे हाँ ही दिख हाँ रहा है? हाँ, वही हो गया। वही हो गया ना. वही हो गया। करेक्ट. लेकिन ये क्यों आया, मतलब हमें सोचना चाहिए ना कि क्यों आया. हम्म। अगर ये पहले से ही था और ये उससे बढ़कर कुछ और कर नहीं रहा है, तो ये क्यों आया. अब देखिए मैं इसका रीजन बताता हूँ. ये जो आया है सर, ये जो हमारा बना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिस इज रीजन आते हैं. दिस इज न्यू वन। दिस इज द न्यू वन, द राइट वन इज द अच्छा न्यू वन, द लेफ्ट अच्छा। वन इज द ओल्ड वन. ओल्ड वन, ओके। ठीक है. सो व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज अरेंजिंग द टाइल्स नॉट इन द प्रॉपर ऑर्डर. देखिए यहाँ पे दो खाली रह गए जगह, हाँ हाँ। है ना, और यहाँ पे देखिए अरेंज हो गया प्रॉपर. प्लस इज इट इज अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यहाँ पे ये अल्फाबेटिकली है क्या सर? नहीं। यहाँ पे ऐसा अल्फाबेटिकल है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सेंट्रल फ्रांस, फिर जर्मनी, नॉर्थ, ये ऐसे ऐसे मतलब रो वाइज चल रहा है. पहले रो आए, फिर कॉलम आए, फिर कॉलम रो आए, ऐसा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट दे डू इज दे सी कि हाउ द पीपल आर यूजिंग द विजुअल्स एंड व्हाट सजेशंस दे आर गिविंग. ये अपडेट जब आते हैं, जब बहुत सारे लोग जो डेवलपर हैं, जैसे इवन आई एम अ डेवलपर विद माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, आई मतलब कुछ कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, तो फिर आपको वो डेवलपर बना देते हैं. डेवलपर का मतलब क्या है कि आप डेवलप कर सकते हैं, आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं. तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा कि भाई ये अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं होता, ये रो वाइज होता है, कॉलम वाइज होता है, तो उन्होंने एक नया स्लाइसर बना दिया कि अब आप न्यू वाला यूज करिए, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. करेक्ट. तो Sir, मुझे sir, साइज. since we are not having the licensed version, the whether this update will also be there in our system? यस सर, यस सर.
आई थिंक हाँ इट विल बी देयर। आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अपडेट योर पावर बीआई, है From ना। where we will update it? सो यू विल गो टू अप यहाँ पे ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, ऑप्शंस, Excel. और आई थिंक ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसमें ऑप्शन आएगा आपके पास अपडेट का। यूसेज डेटा, तो ऊपर नीचे 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 अपडेट्स, अपडेट, हाँ हाँ अपडेट्स। करेक्ट। सो यहाँ पर है ना, यू हैव टू डिस्प्ले अपडेट नोटिफिकेशन पावर बीआई। आई हैव अपडेटेड माई, मतलब मेरा ये ऑटोमेटिकली ऑटो अपडेट हो जाता है आपके पास। आप चेक कर लीजिए इफ अच्छा, दिस ऑप्शन इज देयर और नॉट, है ना, यू कैन सी। तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, यू विल गेट दैट ऑप्शन। अदरवाइज यू कैन गो टू पावर बीआई वेबसाइट एंड अपडेट फ्रॉम देयर ऑल्सो, वहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट करने का। सो वंस यू अपडेट, अभी कितने लोगों को दिख रहा है दिस ऑप्शन, स्लाइसर वन विच आई एम शोइंग यू राइट नाउ? आर यू एबल टू सी और यू नॉट एबल टू सी? ठीक है, नो देर सर, इज, यू आर नॉट एबल टू सी दिस। मुझे अपडेट करना पड़ेगा मे बी ये। हाँ हाँ, तो इन दैट केस यू हैव टू डू, अभी देखो इन्होंने एक और टेक्स्ट स्लाइसर डाल दिया है, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन ऐड अ टेक्स्ट एंड वी कैन स्लाइस। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रांस, ठीक है। आई हैव नॉट ट्राइड दिस, ओके, आई एम डूइंग रैंडमली राइट नाउ, बट आई थिंक वी हैव टू ऐड सम डेटा एंड देन वी विल बी एबल टू डू दैट, ओके। मैं यहाँ पे कर देता हूँ रीजन। अभी आई हैव एडेड दिस इन द रीजन, नाउ लेट मी राइट फ्रांस। देखिए हो गया, है ना। और मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से कनाडा, हो गया, है ना। सो दिस इज अ टेक्स्ट स्लाइसर, दैट मीन्स यू हैव टू टाइप इन टेक्स्ट सो एज टू filter your options. So these are the new things which are there, and we will explore this once I see it, ठीक है। लिस्ट स्लाइसर, ठीक है। सो यहाँ पे लिस्ट स्लाइसर है, व्हाट वी विल डू इज वी विल ऐड एनी फील्ड, लेट्स से प्रोडक्ट कैटेगरी डाल देते हैं। सो इट इज गिविंग मी अ लिस्ट, ठीक है। पहले कभी भी ऐसे स्लाइसर नहीं आते थे। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट यूज इट एज अ रेडियो बटन। दीज आर कॉल्ड एज रेडियो बटन। जो गोल होते हैं वो रेडियो बटन होते हैं, और एक चेक बॉक्स होता है स्क्वायर शेप में। हम्म, सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसर्स विच आर अवेलेबल, ठीक है। नाउ लेट मी ऐड द सब कैटेगरी ऑल्सो, ठीक है। अब देखिए कमाल, देखिए कि एसेसरीज के अंदर सब कैटेगरी आ गया। अब मुझे मान लीजिए एसेसरी में बाइक रैक्स का देखना है, तो ये बाइक रैक का आ गया पूरा। बॉटल एंड केज का देखना है तो वो आ गया, ठीक है। सो आई एम एबल टू सी कि व्हाट इज द सेल ऑफ हेलमेट इन द एक्सेसरी। तो ये हेलमेट तीन तरीके के हैं, तो तीनों का रेशियो दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 30-30% तीनों बिक रहे हैं, तो ठीक है। earlier it was not there, ना? अर्लियर इट वाज नॉट देयर। हाँ, earlier it was not there. अर्लियर यू कैन नॉट डू टू कैटेगराइजेशन इन द स्लाइसर, जैसे आपने यहाँ पे रीजन लिख दिया। अब हम्म, रीजन के अंदर आप अगर और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, वो ऑप्शन नहीं था, अब वो नहीं इन्होंने था। एनहांस कर दिया इसको, हाँ हाँ, है ना। सो दिस इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ये द अपडेशंस, करेक्ट। अपडेशन। हाँ, एंड गेटिंग अपडेटेड टू द लेटेस्ट थिंग्स, ठीक है। चलिए, दिस वाज वन थिंग। नाउ again coming back to what we were discussing, so standard cost, although it is looking like a number but it is not a measure, we will use it as a Dimension. dimension Dimension. only, correct. And we can put this into a group or data category. Last time I had shown you कि we can create data groups, correct. So suppose I want to see कि my bin, यहाँ पे देखिए minimum value 1 है और maximum value 2171. That means the standard cost of producing any product is ranging from 1, so 2171. Now I want to divide it into let's say 50-50 of standard cost, like 1 to 50, 50 to 100, like that. So मैं यहाँ पे क्या करूँगा, I'll keep bin size as 50, okay, and now I will say okay. So what will happen? Standard cost bin will be there, correct? And you will see these bins being created. ठीक है, 50-50 का। आपको लगता है कि ये रेंज बहुत बड़ा है, तो आप 50 की जगह 100 के बिन्स बना दीजिए, ठीक है। तो अगेन वी कैन गो टू दिस, वी कैन से एडिट डेटा ग्रुप्स, and instead of 50 I can have 150 also, and I click on OK. Now when I have 150 ka bin, I have limited number of bins. Now what I can do is I can go to my visual,
screen and I can find out like what is the standard cost of producing a particular uh, लॉट साइज। ओके, तो मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे रख दिया इसको, और यहाँ पे हम रख देते हैं एक्स एक्सिस में, लेट से मैं रखता हूँ प्रोडक्ट। सो व्हाट आई विल गेट, व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग कि हाउ मेनी प्रोडक्ट, दिस इज अ नंबर, लेट मी पुट कन्वर्ट दिस इनटू अ टेबल। अब देखिए आपके पास क्या आया सर, है ना। दिस आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ टू लुक एट द डेटा एंड हाउ यू कैन डू, हाउ यू शुड डू एनालिसिस ऑफ दैट डेटा। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट बिन 0 से 150 के बीच में 150 प्रोडक्ट है हमारे पास, जो जिसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट 0 से 150 के बीच में है। जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती जाती है नंबर कम होता जाता है, करेक्ट। सो द कंपनी इज डीलिंग इनटू मैक्सिमम प्रोडक्ट्स विच आर इन द रेंज ऑफ 0 to 300 कॉस्ट। 300 के ऊपर जाती है वो एलीट प्रीमियम प्रोडक्ट्स आ जाते होंगे, तो नंबर कम होता जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? सो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू आर प्रोड्यूसिंग इन टोटल? 397। आउट ऑफ दिस इज द रेंज, करेक्ट। And this table is arranged by way of count of product. हाँ, बाय वे ऑफ काउंट ऑफ प्रोडक्ट, सो यू कैन अरेंज इट बाय द साइज ऑल्सो, है ना। अच्छा तो अच्छा अब आप इसको रिवर्स कर दीजिए कि अच्छा स्टैंडर्ड कॉस्ट को अगर आपने बेस ले लिया, अच्छा अच्छा तो 2100 से 1800 से अच्छा 2100 बीच वाले कितने हैं, एंड सो ऑन। अच्छा सो इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ यू वांट टू लुक एट थिंग्स, ठीक है। ठीक। So this is one thing. Now I want to introduce a very good visual today. आज हम visual को देखते हैं, and tomorrow we will see, we'll start creating some good visuals tomorrow. But one visual I want to show and which I'm sure कि आप लोगों को नहीं पता है ये। I think ये मैंने करा दिया क्या, स्कैटर चार्ट नहीं कराया अभी सर, ये नहीं करा है ना? ओके, नहीं कराया। ठीक है। So everyone can select this scatter chart and we are going to create this and I'm going to show you how you can use it. Okay. Okay, Ria says I can see it. So your Ria, your Power BI is updated then. ठीक है। So others also you can update it, है ना, तो आपको भी दिखने लग जाएगा। Now see, नहीं, बिल्कुल सर, हमारे पास भी आ गया सर, अपडेट हो गया ये भी। हो गया है, अच्छा हाँ वाह, हाँ हाँ, आ गया अपडेट आ गया वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, आ गया। नाइस। सो नाउ इन द स्कैटर चार्ट, ठीक है, आप स्कैटर चार्ट जब बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, सी वेन एवर यू यू सपोज आज हमने ये क्लास कर रहे हैं, 3 महीने बाद जब ये बैच खत्म हो जाएगा, 2 नए विजुअल्स आ गए। आप कैसे कैसे सीखोगे कि इस विजुअल का क्या पर्पस है ना। सपोज we are not meeting or we are not having any classes or any revision classes, I am not accessible, मैं बाहर हूँ और आपको सीखना है, तो आप कैसे करेंगे, है ना। That will very fateful day sir for us. हाँ है ना। सर मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था, एंड वो कोट पढ़ने के बाद पहले मुझे लगा कि ये क्या लिखा है, फिर मैंने जब उसका डीप मीनिंग समझा, तो मुझे सोचा कि कितना मतलब डीप कोट है। वो कोट था, हु इज द, उसके ऊपर क्वेश्चन था कि हु इज द बेस्ट टीचर, ठीक है, और उसके नीचे लिखा था अ बेस्ट टीचर इज दैट हु इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो मैंने पहली बार सुना, मैंने क्या, ये क्या मतलब है, मतलब मेरी जरूरत ही नहीं होगी तो मैं बेस्ट टीचर होऊंगा, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। फिर जब मैंने उसको बहुत दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा और आई थॉट अबाउट इट, तो मैंने कहा यार इसका मतलब ये है कि वो टीचर सबसे अच्छा है जिसकी जरूरत ही ना हो, मतलब वो स्टूडेंट को इतना सेल्फ रिलायंट बना दे, Saturday बना दे। है ना, कि उसको टीचर की जरूरत नहीं। बोले सर हाँ आपने सिखा दिया, अब मेरे को सीखना आ गया है ना। तो दिस इज व्हाट आई वांट। वो लाइन पढ़ने के बाद जो मेरा खुद को एज अ टीचर देखने का पर्सपेक्टिव था वो चेंज हो गया, कि स्टूडेंट को ऐसे ट्रेन करो कि वो 10 जनों को जाके और चीज सिखा सके, है ना, उसको मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए बाद में। सर ये लर्निंग प्रोसेस है ना, दिस इज अनएंडिंग प्रोसेस, द पर्सन कीप्स ऑन एग्जैक्टली, लर्निंग, यस यस यस, एंड एवरी डे देयर इज अ न्यू। मतलब डे इन डे आउट सर ये। करेक्ट। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट कि जब भी कोई नई चीज आती है ना, व्हाट यू डू इज, सपोज दिस इज अ न्यू विजुअल and you want to learn it on your own without me teaching it, what you will do is you will select this, you will put it over here, correct। उसके बाद क्या करेंगे, we will go to the build visual build part, क्योंकि यहीं से ही सारे विजुअल्स के अंदर चीजें डाली जाती हैं। हाँ मैंने कैसे सीखा मैं बताता हूँ।
फिर ये बोल रहा है वैल्यूज, फिर ये बोल रहा है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, लेजेंड, साइज, है ना, प्ले एक्सेस भी है, टूल टिप्स भी है। अब यू डोंट नो कि हाउ टू प्रोसीड, व्हाट यू विल डू, यू विल पुट सम इन द वैल्यू। तो हम वैल्यू में मान लीजिए हम सेल्स टैब में गए और मैंने रख दिया क्वांटिटी। क्या दिखाई दिया सर? एक डॉट, only one dot is visible, right? If you hover your mouse on this, so you will see 44 quantity as 44. Now what is 44? Now if we go to the table, okay, and we look at the quantity column in the sales table, let us go to the sales table and let's look at the quantity column. तो मैं इसको क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा उसका डेटा। इफ यू लुक एट द क्वांटिटी, इट इज हैविंग 1 से लेके 44 वैल्यूज, करेक्ट, एंड इट इज अ मेजर। और यहाँ पे देखिए समीशन में क्या लिखा हुआ है, सम। इसका मतलब कि अगर सम आता, ठीक है, नाउ लेट मी पुट द कार्ड, लेट मी पुट अ कार्ड, सॉरी। तो ये विजुअल तो हमारा है ही, ठीक है, इसको हम थोड़ा साइड छोटा कर देते हैं, और लेट मी पुट अ कार्ड नियर बाय दिस। सो ये कार्ड मैंने इंट्रोड्यूस किया, इसके ऊपर ही क्यों आ रहा है? Yeah, I want this card to be placed here, right in front of this. Okay. So this is a dot and this is a card. Now let me put the quantity into the card. Okay. Now what we are getting? 204K. ठीक है। Now what is this sum of quantity? करेक्ट, क्वांटिटी तो हमारी 1 से लेके 44 थी, लेकिन 1 से लेके 44 क्वांटिटीज इज गेटिंग रिपीटेड 700 times, because if you see at the data, there are, oh, sorry, not 700 times, there are 57 851 rows, correct. Now again, you want to check whether this 204K, what is the exact number, let us look at the exact number, call out value में जाएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे none। तो क्या आ गया? 204114, करेक्ट। Now I want to check, is the total quantity sold is 2,04,144। ठीक है, हाउ टू चेक? यहाँ पे देर इज अ न्यू मेजर, ठीक है, आई एम टीचिंग द डैक्स, वी आर स्टार्टिंग विद डैक्स एंड वी वांट टू सी द टोटल क्वांटिटी QTY। तो ये मैंने नाम दे दिया इस फंक्शन को टोटल क्वांटिटी, ओके। एंड व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू टेक द सम, so we'll write sum, and we want to say take the sum of what, we want to take the sum Product, sales product quantity. table and quantity column। तो आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। व्हाट आई हैव डन, टोटल क्वांटिटी इज द मेजर नेम, करेक्ट, एंड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज अ अंडरस्कोर बिटवीन टू वर्ड्स। तो टोटल अलग हो गया, क्वांटिटी अलग हो गया, टोटल क्वांटिटी एंड देन सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी दिस, एंड आई प्रेस So, so why I put this underscore? so just to segregate the two words। So if you don't put the underscore and just simply write the quantity, then will it make any difference? No, it will not make any difference. Just to understand that this is total quantity. Like since we are talking, if someone else look at this report afterwards, ठीक है, तो उसको भी समझ में आना चाहिए ना कि टोटल क्वांटिटी है ये। ठीक है। इसके लिए हमने उसके इजी बना दिया उसको समझने के लिए, कि उसको समझ में आ जाए कि देर आर टू वर्ड्स एंड दिस मीन्स टोटल क्वांटिटी। ठीक है। अब देखिए, वेन एवर वी क्रिएट अ मेजर, it will appear over here in the form of calculator, okay। So this is a sign that it is a calculated field। अब प्रोडक्ट वाली टेबल में क्वांटिटी कहीं पे भी नहीं है, करेक्ट। लेकिन क्वांटिटी कहाँ से बनाई हमने, ये फॉर्मूला कहाँ पे लगाया, सेल्स टेबल का क्वांटिटी लेके, ठीक है। बट कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट गॉट प्लेस्ड ओवर हियर इन द प्रोडक्ट टेबल? टेक्निकल क्वेश्चन है ये। Because we are working on the product table. सो हाउ वी वर वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट टेबल? आई वाज ऑन द सेल्स टेबल। मैंने तो क्वांटिटी, इस ये जो विजुअल ये वाला बनाया सर, तो इसमें हमने क्या करा, क्वांटिटी उठाया, ठीक है। फिर जब यहाँ पर हमने आके और वो रखा क्वांटिटी, Sum तो of quantity. टेबल से रखा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट में कहाँ चला गया? एनीवन वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? Uh, maybe because we are summing the product, that's why as per hierarchy it is in the product. वी आर नॉट समिंग द प्रोडक्ट, वी आर समिंग द क्वांटिटी। बोथ आर Yes.
नो, नो पूजा। अच्छा, और कोई टेबल में क्यों नहीं गया? सारी टेबल आपस में लिंक्ड है ना। क्वांटिटी इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट। अच्छा, ओके, ठीक है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, देखिए। अच्छा चलो, मैं अभी रीजन वाले टेबल में आता हूँ, ठीक है। लेट मी क्रिएट वन मोर मेजर, ठीक है। लेट अस क्रिएट वन मोर मेजर, ठीक है। टोटल क्वांटिटी जो हमने निकाला है उसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। टोटल तो आ गया ही यहाँ पर, ठीक है। नाउ दिस दिस इज कमिंग फ्रॉम द सेल्स टेबल एंड दिस, ठीक है, एक मिनट, सॉरी। दिस कमिंग फ्रॉम द सेल्स टेबल। नाउ इफ आई रिमूव दिस quantity and I'll put this quantity, you will see the number is same. Is the number same? Yeah, Correct? yeah. ठीक है। नाउ लेट अस क्रिएट वन मोर। अभी हम कौन से टेबल में हैं? एनीवन? अभी हम कौन से टेबल हम सेलेक्ट कर रखा है? आपको पता चल रहा है क्या कि आर वी आर इन विच टेबल? अभी सी, वंस वी हैव नॉट selected any visual, we will not be able to answer this question. You are not in a position to answer this question, which table is selected. Am I right? Because we have not selected anything so far. Abhi, if I click on this visual, now which table is selected? Can you look at my screen and tell me? Sales. Sales table. How you are able to tell? Because there is a tick, Yeah. correct? Now see which table is selected. The product table, because there is a tick, Tick. correct? Yeah. अभी मैं ब्लैंक कैनवास में क्लिक किया हूं, कौन सा टेबल सेलेक्टेड है? नथिंग। Nothing. नथिंग, करेक्ट। नाउ इफ आई क्लिक ऑन न्यू मेजर, where it will go, where it is going? Product table. Now why product table? Because it is the first table in the hierarchy. समझ गए? Yeah. Now you got the answer. Yeah. ठीक, In order of appearance. in order of appearance, yeah, right. Now let's say suppose I call this region table. I'm just renaming this region table. मैं यहाँ पे इसके लिख देता हूँ आगे dim. Now has the dim region come on top of the product table? Yeah. Yeah. देखा आपने, सीक्वेंस चेंज हो गया अपने आप, नाम हाँ, बदलते ही। हाँ, हाँ. ठीक है। नाउ लेट अस क्रिएट अ मेजर। अगेन आई विल से न्यू मेजर, ठीक है। ये कहाँ बना सर? Dim. डिम में। क्यों बना? क्योंकि ये पहली टेबल थी, Parity. है ना। तो बाय डिफॉल्ट अभी मैं क्या मेजर बना रहा हूँ? एवरेज क्वांटिटी का। सो आई एम राइटिंग एवरेज अंडरस्कोर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू, नाउ टू फाइंड आउट एवरेज, व्हाट फॉर्मूला वी नीड टू यूज? एवरेज, Average. करेक्ट। एवरेज ऑफ व्हाट? अगेन सेल्स टेबल, एंड सेल्स में कौन सा वाला? क्वांटिटी। Quantity. Have we created this measure, average quantity? Mhm. Correct. Again, what I will do, I'll take one card, I'll put it here, and I'll put the average quantity here. आ गया। एवरेज क्वांटिटी क्या है? 3.53 है। टोटल क्वांटिटी क्या है? 204.114। ठीक है। यहां पर आई हैव पुट ओनली द क्वांटिटी राइट नाउ। ठीक है। अब हम वापस से हमारे स्कैटर डायग्राम में आते हैं। हमने क्वांटिटी में रखा वैल्यू, यहाँ पे और भी ऐड डेटा करने का ऑप्शन है। Along with quantity, let me put the sales as well. ठीक है, क्वांटिटी के साथ मैंने सेल्स रख दिया। डू वी सी एनीथिंग, एनी चेंज? डू वी सी एनी चेंज इन दिस? No, no, no. नो। क्वांटिटी 44 दिखा रहा है। Hmm. अब देखिए, अब क्या दिखा रहा है? सेल्स दिखा रहा है Sales. 30993। Yes. Yes, okay. Now let me do one thing. Let me remove both the things from the value. Okay, let me remove both the things from the value, and let me do one thing. Let me put the
on the x axis let me put sales. Now this is going to be very interesting. ठीक है, सिर्फ 10 मिनट और क्लास चलेगी, थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग नाउ. सो आई एम पुटिंग सेल्स ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है, ऑन द वाई एक्सिस आई एम पुटिंग प्रॉफिट. नाउ हाउ मेनी डॉट्स डू यू सी? Wow. On. One. Correct, we can see only one dot. Correct. Now what is that one dot representing? If I click on this, if I keep my mouse over there, what it is showing? Some Sales. total sales. Total Some sales total of from. sales, Total which profit. is 7 crore 75 lakh, if I'm not wrong, correct? And the profit is 10 lakh rupees, correct? Yeah. अगर इसको हम मिलियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ना आसान हो जाएगा हमारे लिए. सो व्हाट वी विल डू, वी विल सेलेक्ट दिस. नाउ हाउ डू आई कन्वर्ट दिस इनटू मिलियन? ये कॉल आउट Right. वैल्यू मुझे मिलियन में चाहिए, कैसे करेंगे हम? कहाँ मिलेगा इसका ऑप्शन? आई नीड टू गो टू द एक्स एक्सिस Excellent. एंड वैल्यूज. एंड वैल्यूज में यहाँ पे जहाँ डिस्प्ले यूनिट्स हैं, वहां पे मैं कर दूंगा मिलियन. ठीक है. Similarly, I'll go to y-axis. Y-axis में I'll go to values. In the values, I'll go to and make it million. ठीक है. और यहाँ पर is the category label on. If you do the category label on, यहाँ पे blank दिखाएगा. ठीक है. I'll tell you why. Because there is no category right now. ठीक है. Let me just do some things and show you. ठीक है. हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ठीक कर दिया है. एंड करेक्ट. नाउ लेट मी अगेन कम हियर. ओके, स्टिल इट इज नॉट शोइंग इन मिलियंस. ठीक है, हमने मिलियन तो कर दिया था, लेकिन ये देखिए, ये चेंज हो गया है ना. यहाँ पे 0.8 मिलियन, 1 मिलियन, 1.2 मिलियन, 1.4 मिलियन दिखा रहे हैं. यहाँ पे 80 मिलियन दिखा रहा है. ठीक है. सो हमारा जो सेल्स है वो 80 मिलियन से थोड़ा सा कम है, विच इज 77 मिलियन. करेक्ट. और हमारा जो प्रॉफिट है वो एग्जैक्टली 1 मिलियन है. आर यू गेटिंग इट? यस और नो? नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पुटिंग सेल्स हमने ले लिया, प्रॉफिट हमने ले लिया. ठीक है. नाउ आई एम पुटिंग द क्वांटिटी इनटू साइज. ठीक है, साइज में मैंने क्वांटिटी डाल दिया. कैन यू सी अ बिगर डॉट नाउ? हेलो एवरीवन, आर यू ऑल विद मी? यस सर। हाँ हाँ, ठीक है. सब लोग खो गए लगता है ना, इसलिए. चलिए. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट पुटिंग एवरीथिंग इन कार्ड ऑल्सो, सो दैट यू कैन कनेक्ट विथ व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ. ठीक है. चलिए. तो देखिए, 78 मिलियन हमारा सेल्स है, 1 मिलियन हमारा प्रॉफिट है. ये इंटरसेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड सेल्स है. और वो क्वांटिटी दिख रहा है, 4,02,04,144. आई पुट ऑल द थ्री इन वन कार्ड, इन थ्री कार्ड्स ओवर हियर. इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सेल्स एंड द प्रॉफिट. एम आई राइट? Now, what does it convey? सॉरी, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सेल्स एंड द प्रॉफिट. जहां पे सेल्स और प्रॉफिट दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मिल रहा है, वो कॉमन पॉइंट है ये. Then what's the purpose? व्हाट इज द पर्पस? Yeah. ठीक है, आई टेल यू. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. जस्ट अ मिनट सर. नाउ answering your question, what is the purpose? Now to attach it to a purpose, we will put legend. अभी तक देखिए मैंने सारी चीजें भर दी थी, है ना. Mhm. लेजेंड बाकी था. अच्छा, टूल टिप्स में हम क्या ऐड कर सकते हैं? टूल टिप में वी कैन ऐड द जीपी ऑल्सो, जीपी रेशियो. सो डिड वी कैलकुलेट द जीपी रेशियो? आई थिंक वी हैड. या इसमें नहीं दिख रहा, हम ग्रॉस प्रॉफिट ले लेते हैं, मान लीजिए. So when you click on it, when you go to this dot, you will see the GP also. GP का ये आ रहा है sum. We don't want sum, we want average. Average. Correct. So in the summation, we will use average. And
So when you take your mouse, it will say 8.95% average of gross profit. ठीक है, चलिए. Now what is the purpose of doing this? ठीक है. Now the actual games begin. ठीक है, अब देखिएगा आप. So what I will do is I'll select this graph. I will go to legend. In the legend, I am going to put the country. जैसे ही मैंने लेजेंड में कंट्री सेलेक्ट करा, व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राफ? टेल मी, व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राफ्स? हाउ मेनी बॉल्स, हाउ मेनी सर्कल्स, हाउ मेनी बबल्स, एनीथिंग यू? कंट्री वाइज सबका कंट्री वाइज। मेजरमेंट्स आ जाएगा। हाँ, करेक्ट. अब यहां से समझना चालू होता है हमारा, ठीक है, कि सारी कंट्रीज आ गई. कितनी कंट्रीज है हमारे पास? यूएसए, ये ऊपर देखिए इधर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस. करेक्ट. नाउ टेल मी व्हाई यूएस इज ऑन द एक्सट्रीम राइट and Australia is on the extreme left, and the size is also varying. आप जैसे हम सोलर सिस्टम देखते हैं ना, अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग जगह पे होते हैं, हम्म, कुछ ज्यादा वैसे. प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट हुआ एंड है। लॉस वाइज डेटा शोइंग है। हाँ, करेक्ट. सो दिस आई कॉल इट एज, दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ द sales and profit basis the country. This is the placement of the country based on the sales and profit. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या बात बोल रहा हूँ मैं. अब आप हम यूएस पे क्लिक करेंगे, आपको ये नंबर चेंज होते दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? यस। करेक्ट. सो यूएस हैज द, व्हाट वाज द टोटल क्वांटिटी सोल्ड? अगेन 2,04,000. करेक्ट. दिस इज द टोटल क्वांटिटी सोल्ड. व्हेन आई क्लिक ऑन यूएस, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड? 127. सो इज इट मोर देन 50% ऑफ द एंटायर क्वांटिटी जो यूएस की क्वांटिटी है? करेक्ट. यूएस का इकलौता सेल क्वांटिटी जो है वो टोटल क्वांटिटी के 50% से ज्यादा हो गया या नहीं हो गया, बताइए. हो गया, हो गया। हो गया, हो हो गया गया। ना? ठीक है. टोटल सेल्स कितनी है? 78 है. अगर मैं यूएस को सेलेक्ट करता हूं, अभी कितनी सेल है इसकी? 52 मिलियन. और टोटल सेल्स क्या थी? 78 मिलियन. कितना परसेंटेज आ गया ये पर्टिकुलर कंट्री का सेल्स एज कंपेयर टू टोटल सेल्स? अब मान लीजिए आपको ऐसा कोई कैलकुलेशन करना है कि कंट्री सेल एज कंपेयर टू टोटल सेल, तो कैसे होगा बताइए? इज इट पॉसिबल और नॉट? फर्स्ट टेल मी दैट. सपोज मुझे परसेंटेज ऑफ ये निकालना है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कंट्री टू द टोटल सेल्स. हाउ कैन आई डू दैट? कैन आई बिल्ड अ टेबल, and in the table what I'll do is, in the table I will add the country and I will add the sales. अभी हमने यूएस पे क्लिक करके यूएस दिखा रहा है. ठीक है. अभी देखिए आप, थोड़ा सा नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टेबल बनी है. ठीक है. इज इट शोइंग मी द कंट्री वाइज सेल्स? इज द टेबल शोइंग कंट्री वाइज सेल्स? यस और नो? यस. यस, एवरीवन इज सेइंग यस. ओके. नाउ हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स? How can I convert this into percentage of total sales? How can I convert this into percentage of total sales? Major. Hmm? Can Measure. we create new major? Correct. We will create a measure. Or can we add something, or is there any option to see it as a percentage of total? क्या इस टेबल के अंदर राइट क्लिक करने से, ठीक है, इफ यू से न्यू विजुअल कैलकुलेशन, ठीक है, and you say percentage of grand total, so see what it is giving me.
it is giving me a column and it is automatically writing percent of grand total divide field collapse alt field access. ये देखो इसने खुद से दे दिया है. And if I click on this and am I getting that calculation in the table? एक second. Let me do that again. Are you getting it? इसमें तो कुछ एरर आ रहा है. एक सेकेंड. डिवाइड फील्ड में हमको लेना पड़ेगा आई थिंक सेल्स. सम ऑफ सेल्स यहाँ पे भी लेना पड़ेगा. Sir, country's total sales divided by total sale. सॉरी. Uh, Can we do like total of country sales divided by हम्म. sum of total sales of all country? करेक्ट. तो हमें कंट्री वाइज सेल्स का टोटल निकालना पड़ेगा ना. वेयर डू वी हैव द कंट्री वाइज सेल्स? डू वी हैव द कंट्री वाइज सेल्स एनीवेयर? No. नो. है ना. सो वी हैव टू कैलकुलेट अ मेजर. बट अभी ये एक्चुअली काम नहीं कर रहा है. इट वर्क्स एक्चुअली. ये यहाँ पर है ना ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर देता है. लेट्स से रनिंग सम मैं करता हूँ. आप लोग करके देखिए. इज इट वर्किंग फॉर यू? इट शुड एक्चुअली वर्क. देखिए आ गया. सी. कैन यू सी दिस कैलकुलेशन? कैन यू सी दिस कैलकुलेशन द सेकेंड कॉलम on my screen? Yeah. What it is? It is a running total. जैसे ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा ऐड कर दिया इतना हो गया. कनाडा में फ्रांस ऐड कर दिया इतना हो गया. फ्रांस में जर्मनी ऐड कर दिया इतना हो गया. यूके एंड यूएस. सो दिस इज द टोटल सेल अमाउंट विच इज मैचिंग विद दिस. सेवन. क्यूमुलेटिव टोटल आ जाता है ये. क्यूमुलेटिव टोटल आ गया. एग्जैक्टली exactly. अगर ये कंट्री की जगह मंथ होता. लेट मी जस्ट शो यू लाइक दिस by adding one more thing. But this was not the purpose of doing this. मैंने ये कैलकुलेशन आपको बीच में दिखा दिया है. एक सेकेंड. month. Now see, do you see now what I have done? Let me add the month on the top. Can you see this? Jan to December आपको दिख रहा है calculations, correct? And can you see the running total also? अभी मान लीजिए किसको बताया ना जून तक कितनी सेल हो गई थी हमारी. तो इट इज 3 million 33 million. मार्च तक कितना हो गया था? 16 million. सितंबर तक कितना हो गया? 53 million. और दिसंबर जब क्लोज हुआ तो इट क्लोज एट 77 million, 77.5 million, 78 million सेल्स. करेक्ट. सो डिड आई राइट अ फॉर्मूला टू गेट दिस कैलकुलेशन? क्या हमने कोई मेजर बनाया क्या सर? नहीं. नहीं. ये ऑटोमेटिकली अवेलेबल था पावर बीआई में. है ना. दिस इज द. और ये पीछे इसके नीचे दिस इज द कैलकुलेशन रनिंग सम ऑफ सेल्स. करेक्ट. सिमिलरली यू कुड गेट द परसेंटेज सेल ऑल्सो. ठीक है. बाय क्लिकिंग ऑन दिस कॉलम देर इज अ ऑप्शन ऑफ न्यू कैलकुलेट विजडम एंड यहाँ पर होता है परसेंटेज ऑफ पेरेंट. ठीक है. सो ये जो होगा इसमें कुछ डिफाइन नहीं है इसलिए ये नहीं आ रहा. बट वी विल गेट लाइक समथिंग लाइक दिस. ठीक है. बट दिस इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज what I want to show you is that, okay, what is the meaning of this? What is the meaning of this? It means that US has got the highest sales with the highest profit also. क्योंकि हमने एक्स एक्सेस पे क्या रखा है? सेल्स रखा है. वाई एक्सेस पे क्या रखा है? प्रॉफिट. सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल और प्रॉफिट किसका? यूएस का है. उसके बाद किसका है? कनाडा का. उसके बाद किसका है? सो यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया.
But is this the same position across every month? Can we say कि हर महीना ऐसे ही रहा होगा? Can we say? No. No. Now let us prove this. Let us prove this. Whatever we are saying, let us test what we are saying is right or not. Okay. So how do we do that? We will insert all the months. तो मैं एक slicer लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, and I will put the months into the slicer. सी जब तक आपके विजुअल में स्लाइसर नहीं होगा ना डैशबोर्ड में, तब तक आपको मजा नहीं आएगा टू डू द विजुअलाइजेशन. यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ इट. ठीक है. आई हैव इंट्रोड्यूस दिस मंथ. नाउ लेट मी सेलेक्ट मार्च. मार्च में क्या हुआ, थोड़ी पोजीशन चेंज हुई. ठीक है. आप देखेंगे, अभी देखिए क्या हुआ जून में. क्या हुआ जून में? वेयर इज यूएस? यूएस का प्रॉफिट कम हो गया, सेल्स अभी भी ज्यादा है, बट प्रॉफिट में क्या हो गया, नीचे आ गया, यहां से नीचे आ गया बिल्कुल. और प्रॉफिटेबल कौन हो गया? फ्रांस एंड यूके. ऑल्दो दिस देयर सेल्स आर लेस, बट दे प्रॉफिट आर मोर. कैन यू सी? तो अगर प्रॉफिट है लॉस होता तो व्हाट वुड हैव बीन पोजीशन? सर लॉस भी होता तो इट हैड अपीयर्ड ऑन दिस एक्सेस. ये देखिए माइनस में ही है, अच्छा. तो सबसे नीचे दिखाता है. देखिए जर्मनी लॉस में है ना. ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो इन लॉस. ठीक है. ये आपका एक्स एक्सिस यहाँ से स्टार्ट हो अच्छा रहा है अच्छा जीरो. अच्छा अच्छा अच्छा, ये समझ गया. France and Canada is are two profitable ओके. countries, and these all, even the US is into loss in the month of July. Are you getting it? ये देखिए ना सर, यहाँ पे देखिए, ये जो विजुअल्स हमने बनाए हैं, ये जो कार्ड बनाए हैं, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यही है ना कि लॉस आ रहा है. एग्जैक्टली इट इज अ लॉस. इट इज अ लॉस मेकिंग मंथ फॉर एवरीथिंग. इट इज अ लॉस. बट आप जिस कंट्री पे आप क्लिक करेंगे उस कंट्री का लॉस दिखा देगा. So you are able to actually see the position of a particular country in a particular month, how much loss it has generated. अब देखिए अगस्त में पोजीशन क्या हुआ, चेंज हो गया वापस, यूएस टॉप पे आ गया. इट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंट्री. सितंबर ऑल्सो कैनेडा इज लीडिंग ऑन द सेकेंड पोजीशन इन ऑल द मंथ्स. ठीक है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कंट्री. नाउ इफ आई रिप्लेस द कंट्री इन माई विजुअल with some other thing, let's say यहाँ पे हम लेजेंड की जगह, कंट्री की जगह, अगर हम कैटेगरी को रख देते हैं. सो देर आर दीज कैटेगरीज. नाउ विच इज द हाइएस्ट सोल्ड कैटेगरी इन ऑल द प्रोडक्ट्स? हाइएस्ट सेल्स मेकिंग कैटेगरी क्या आंसर होगा आपका? Bikes. बाइक्स. एंड विच इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कैटेगरी? Components. कंपोनेंट्स. क्योंकि ये प्रॉफिट वाई एक्सेस में इसका ऊपर नंबर देखो, 14% इसका जीपी रेशियो है. इसका कितना है? 0.1441, सॉरी. बट इफ यू लुक एट डिफरेंट मंथ्स, तो अभी देखो आपको बाइक ही दिख रहा है हर जगह. ठीक है. बट ये देखिए यहाँ पर सेल्स बाइक कैटेगरी का ही ज्यादा है, बट प्रॉफिटेबल में कंपोनेंट्स है. सो दिस इज हाउ यू कैन डू द एनालिसिस. एंड वन थिंग मोर, लेट्स से इफ वी ऐड in the category, instead of category legend, let me add the subcategory. Now how many bubbles do you see? You see so many bubbles क्योंकि बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं. और अब प्ले एक्सेस में हम क्या करते हैं, प्ले एक्सेस में रख देते हैं कैटेगरी को. नाउ सी, कंपोनेंट्स में ये सारे लोग हैं. ठीक है. व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, इट चेंज द कैटेगरी. ये देखिए, ये आपको दिख रहा है एनिमेशंस कुछ होता हुआ. आई विल अगेन प्ले इट. सो इट इज सर शोइंग वेयर आर वी इन डिफरेंट कैटेगरी. क्लोथिंग अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है क्लोथिंग का, सब जीरो एक्सेस के पास में ही है. कैन यू सी दैट? प्रॉफिट एंड सेल्स ऑल्सो. So it's a very small segment, you can say, or with the country, with the company. If you look at components, it is the second most profitable or sales making segment. But if you look at accessories, also same thing.
But if you look at the bikes, they are the ones who are actually creating profits and sales for the company. Sir, can we put period in that and we can play that What we can put? Month. period month? Yeah, Yes. yeah, sure. That will be even more interesting. अब देखिए यहाँ पे सब कैटेगरी रखा, इसको प्ले करते हैं. या बिकॉज एक्चुअली इट वाज इन स्लाइसर ऑल्सो, इसलिए काम नहीं कर रहा था, अब करेगा. So you'll be able to see the month by month movement of these category of products. तो ये कहाँ से बुक कर रहे हैं साहब आप ये? सर देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है. इन दिस स्कैटर चार्ट दीज आर द थिंग्स आई पुट. यू कैन टेक अ हाँ स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट इट डाउन कि एक्स एक्सेस में हमने सेल्स रखा है, हाँ वाई एक्सेस में वी हैव पुट प्रॉफिट, ऑन द हाँ लेजेंड वी पुट सब कैटेगरी, इन द हाँ. साइज आई पुट क्वांटिटी, इन द प्ले एक्सेस आई पुट मंथ. ओके. So whatever we plot in the play axis, it will actually change when I play the play button. देखिए x axis में अब क्या आ गया, जनवरी टू दिसंबर आ गया. हाँ. तो वो क्या करेगा, हर एक मंथ पे जाएगा, उस मंथ की सेल्स कितनी हुई और उस मंथ का प्रॉफिट कितना था, वो प्लॉट कर देगा. और प्लॉट किसको करेगा, लेजेंड को, जो भी आप लेजेंड में रख रहे हैं. मान लीजिए मैं कंट्री वाइज पोजीशनिंग देखना चाहता हूँ. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज, और आई वांट टू सी द प्रोडक्ट पोजीशन. ठीक है, प्रोडक्ट तो बहुत सारे हो जाएंगे क्या. तो ये देखिए इतने सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास. ओ. ठीक है. सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस यू विल सी दीज बबल्स मूविंग. So this is micromanagement. This is how big companies take decisions or basis. Suppose you want to see how the salesperson has done the sales. अब आपको यहाँ पे ये जितने भी लोग इधर दिख रहे हैं ऑन द इन द सेंटर, they are the ones who have actually worked in the month of May to August. है ना, बाकी लोग तो कहीं दिख ही नहीं रहे. देखिए जनवरी फेब्रवरी में सिर्फ एक लिंडा थी जिसने सेल्स और प्रॉफिट करके दिया, बाकी सब लोग इधर ही हैं. शी इज आउट. दिस इज कॉल्ड एज आउटलायर, मतलब कि जो झुंड से अलग ही दिख रहा है. सो दैट इज हाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई people who are away, like who are different or who are doing different work. ये देखो लिंडा अगस्त में बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर पे चलेगी. तो ये आउटलायर्स कहलाते हैं. So this is one of the my favorite chart in Power BI, which is this. Even if Sorry. Yeah. even if we remove order data, still we can see this chart, right, sir? What if we remove what order? Uh, in black axis we have order date and month. Even if we remove Yeah. order date, Even we if we still remove, can then we'll amount. be able to see like this. If we remove things from play axis, we will be able to see the stationary position. And no, I want to say that in play axis we can put only month. Yeah. Okay. So I put only month only. I put only month. See, I put month. ऑर्डर Okay, डेट okay, के okay. अंदर मंथ सेलेक्ट करा है हमने. ऑर्डर डेट के देर आर मल्टीपल ऑप्शंस. यू कैन सेलेक्ट द क्वार्टर ऑल्सो इंस्टेड ऑफ मंथ. ठीक है, सो इफ यू Got it, सेलेक्ट sir. क्वार्टर तो आप क्वार्टर भी सिलेक्ट कर सकते हो. तो फिर आपको ये क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर देखेगा ऐसा. Yes, sir. Got it. लाइक दिस. गॉट इट. सर अब अगर ये हमारा जो बन गया है ना, ये ग्राफ बन चुका है, अब ये हमें शेयर करना है, वी नीड टू शेयर दिस टू समवन, तो किस वे में हम शेयर कर पाएंगे विद दिस प्ले एक्सेस थिंग एनिमेशन के साथ? वेरी गुड क्वेश्चन. ये किसने पूछा है वैसे, रिया? हु हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन? एनीवे, क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट. कौन पूछ रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है. Anyways, whosoever has asked this question. हाँ हाँ.
और सब ये शेयरिंग जो है ना, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। Correct. Now see, this is one thing. Like there are two options now to share this. One option is that you can export this, ठीक है? Export to PDF. पीडीएफ। अब पीडीएफ जो होगा ना, वो क्या होगा, जितने भी आपने पेजेस बनाए, जितने भी हमने ग्राफ्स बनाए हैं इस रिपोर्ट में, इट विल कन्वर्ट इनटू पीडीएफ. नाउ यू कैन सी दिस पीडीएफ, राइट? बट दिस पीडीएफ विल नॉट बी इंटरैक्टिव, इंटरेक्टिव नहीं होगा। है ना, नहीं होगी. वो सिर्फ आपने जो लास्ट जहां जिस पोजीशन पे थे आप, उस पोजीशन पे वो विजुअल एज इट इज दिखा देगा. यहाँ पे प्ले बटन दबा दबा के वो परेशान हो जाएगा, नहीं प्ले होगा ये, बिकॉज इट इज अ पीडीएफ, इट इज नॉट इंटरैक्टिव. नाउ इफ यू वांट टू शेयर अ इंटरैक्टिव रिपोर्ट, व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे एक ऑप्शन है शेयर का. हम्म। What it will share, the recipient will select, you select will receive a notification email with a link to the file. Now what file? This PBIX file will be shared with them. ठीक है, मैं अपना एक मिनट लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ. But now this, when we are entering into sharing and all these things, basically this is all paid version. So you have to take a subscription of Power BI, okay? And then only you will be able to share this. ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ. If you are not having the paid version, then it will not be shared. Will not be shared, right? See, I've logged in. Now अब आपको यहाँ पे FNU NLU लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, ठीक है? That means I've logged. ठीक है. Now this, upload your file to OneDrive to share it. So I have to upload this file to OneDrive. So this is the file name, okay? And I'm not getting the option to save. Recent location ये चेंज करना पड़ेगा शायद मुझे. More options, I'll go to more options, and then I have to select any particular location on my OneDrive. So ये OneDrive में login करेगा आपकी, ठीक है? And then you have to save your file on OneDrive. जैसे ये मैंने बहुत सारी फाइल्स ऑलरेडी सेव कर रखी है ना. ये एडवेंचर वर्क्स का रिपोर्ट आई शो यू समडे, आई थिंक ये 24 में मैंने बनाया था, 29 जून 24 में. एंड लेट मी सेव दिस ऑन दिस, ठीक है? Uploading, so it is uploading on the drive. I think it is uploaded. Now what I can do is I'll say copy link, so it will generate a link, है ना? It is creating a link. Now I will share this link. Now ये कहाँ चला गया? शेयर पॉइंट पे चला गया, ठीक है? शेयर पॉइंट पे चला गया. Now anyone with the link can edit, ठीक है? चलो कोई बात नहीं. Now let me copy this link. Now when I copy this, I am sharing it in the Zoom chat right now. Everyone पर try ये to go to that link. वो सर शेयर लिंक कहाँ किया आपने? लिंक कहाँ से क्रिएट किया सब ये? सर शेयर पे अच्छा, जब हमने क्लिक किया ना, तो वो लॉग इन करने के लिए बोलेगा. आप अच्छा, लोग अपने जीमेल से लॉग इन करना चाहोगे तो वो लॉग इन नहीं करने देगा आपको, है ना? मतलब इट विल नॉट अलाउ यू टू लॉग इन थ्रू दिस, ओके? ओके। So I'm just putting this in the power. I've just stopped share my screen for some time. I'm putting it in the group as well. Now, have you tried opening that link? What do you see? Open. This folder is empty, sir. This folder is empty. Okay, now, okay, first I have to publish this. So I'll say publish. ठीक है, अब मैं publish करूंगा my workspace पे and I'll select this. ठीक है, अब it is publishing. ये वाला जो लिंक आएगा ना, वो वाला मैं आपको शेयर करता हूँ. आज तो बहुत ज्यादा ही समय सीमा को पार कर दिया हमने. ओके, नाउ दिस इज द लिंक. नाउ दिस लिंक इज ओपनिंग ऑन माय ब्राउजर. कैन यू सी दैट? I hope you are able to see my entire screen. Can you see my browser? Google Chrome browser. Yes. है ना? हाँ. अब यार ये actually there is a problem. It will not allow my this thing. इसका एक Microsoft का account है. I have to log into that account. ठीक है? I will show it to you tomorrow. ठीक है? तो what we have done is we have shared this link. ठीक है? And when I try to open this, I will have to actually uh, log in through my Google Chrome in my OneDrive, and then I will be able to
यूज दैट लिंक, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ओपन में जाके वन ड्राइव पे जाता हूँ एंड लेट मी शो यू दिस वन। तो व्हेन आई शेयर दैट लिंक यू विल बी एबल टू एक्चुअली सी दिस, ठीक है, फाइल। अभी आपको एम्प्टी दिखा रहा है बट वो दिखा देगा आपको, है ना। सो टुमारो वी विल वर्क ऑन दैट, टुडे इट इज लेट, बट टुमारो आई विल शो यू हाउ वी कैन अपलोड दिस। एंड इफ पॉसिबल क्रिएट अ अकाउंट ऑफ वन ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। आप माइक्रोसॉफ्ट पे अपना अकाउंट खोलिए और आई थिंक उस अकाउंट से आप लॉग इन करेंगे तो यू विल बी एबल टू यूज दिस फीचर ऑफ अपलोडिंग द रिपोर्ट ऑन क्लाउड एंड यूज इट और शेयर इट टू मेक इट इंटरेक्टिव। बट वो कमर्शियल यूज हो जाता है, इसलिए दे आर रेस्ट्रिक्टिंग इट। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेशन है कि वंस वी डू द थिंग्स we will not be able to do that, ऐसा है। So we will stop here for the day and we'll continue tomorrow, okay? So today I had shown you one important visual, that is scatter chart, practice it। और हमने कुछ calculations भी देखे। Tomorrow we'll do lot of other calculations, I'll share some material also on DAX। थोड़ा सा वो उसको प्री पढ़ के आना कल की क्लास के लिए। एंड वी विल एक्चुअली क्रिएट सम, जैसे मैं आज आपसे पूछ रहा था कि कंट्री वाइज कितना किसका रेशियो है वो निकालना है, तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, दैट आई बी शोइंग टुमारो। सर ये प्रॉफिट पर यूनिट का वर्कआउट कर दिएगा, बता दिएगा। ये प्रॉफिट पर यूनिट वर्कआउट नहीं होता है हमारे से ये।